Good morning, everyone. Today we will discuss about dicot leaf and monocot stem. These picture shows differences between monocot and dicot leaf. So this one is the dicot leaf. Dicot leaf के जो features हैं वो है इसमें जो venation होती है that is reticulate venation means it will form the network of veins. While in case of monocot leaves the venations are parallel venations होती हैं इसमें. So this is the same picture here. This is the dicot leaf having reticulate venation and this is the leaf of monocot, the grass leaf. इसमें जो venation होती है that is parallel venation. So leaves को हम externally identify कर सकते हैं on the basis of vein arrangement कि leaf dicot है या monocot है. So अगर हम anatomy की बात करते हैं dicot leaf की, so जो dicot leaf है, this is a leaf, dicot leaf. अगर हम इसका एक small portion vertical section काटते हैं the mid-rib region, so हमें magnified version इसका ये दिखेगा, this one. So जो dicot leaf है, इसके जो different parts हैं अगर हम उनकी बात करें तो it consists of upper epidermis जो कि dorsal surface है इसका, dorsal surface. और जो डाइकॉट लीफ है उसको और डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहा जाता है. सो इसका जो डॉर्सल सरफेस है इसमें जो एपिडर्मिस, दिस इज अपर एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स. इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स की कम्पैक्टली अरेंजमेंट होती है और इसमें कोई भी स्टोमेटाज नहीं होते इन केस ऑफ डाइकॉट्स. अपर एपिडर्मिस इज नॉट इंटरप्टेड बाय स्टोमेटाज. देन एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय मेसोफिल टिश्यू. जो लीव्स में मेसोफिल होता है, ये जो सेल्स होते हैं मेसोफिल के सेल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. दीज आर अगेन पैरेन्काइमेटस सेल्स बट दे बियर न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट एंड दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस. सो जो मेसोफिल टिश्यू है डाइकॉट लीफ में, इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ पैलिसेड पैरेन्काइमा जो कि लार्ज इलोंगेटेड सेल से मिलकर बनता है विच आर कम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस. This is called palisade parenchyma. और जो spongy parenchyma की cells हैं, these are parenchymatous cells which are polygonal, circular, oval shaped, having large intercellular spaces. They are loosely arranged. जो spongy parenchyma के cells होते हैं वो loosely arranged होते हैं. Then it consists of vascular bundles. जो vascular bundles होते हैं dicot leaves में, these are conjoint, collateral and closed. Closed means जो cambium है वो absent होता है in case of dicot leaf. Then lastly it is followed by this lower epidermis. जो lower epidermis है, it is again made up of parenchymatous cells, compactly arranged होते हैं, but these are interrupted by these cells are interrupted by small pore like structure which are known as stomata. So this is the brief description of this anatomy of dicot leaf. So dicot leaf is also known as dorsiventral leaf because there is dorsal and ventral sides which are clearly distinguishable. So first part of this TS of dicot leaf is upper epidermis. It is single layer made up of compactly arranged parenchymatous cells. Then this layer is covered by waxy substance which is known as cuticle. So it is highly cutinized on the outer surface. स्टोमेटा जनरली एब्सेंट होते हैं ऊपर की एपिडर्मिस में, अपर एपिडर्मिस में. देन इट इज़ फॉलोड बाय मेसोफिल. मेसोफिल इज़ द मिडल टिश्यू विच लाइज बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस. इट लाइज बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस एंड इट इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला है पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरा है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. सो ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ऊपर वाला, दीज आर इलोंगेटेड सेल्स विच आर कम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं और इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है. ये जो सेल्स हैं दीज फॉर्म द फर्स्ट लेयर ऑफ मेसोफिल विच इज़ पैलिसेड पैरेन्काइमा. सो फर्स्ट वन इज पैलिसेड पैरेन्काइमा. इट इज़ प्रेजेंट बिलो द अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है. ये कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड इलोंगेटेड सेल. इसमें जो सेल्स की पैकिंग है दैट इज क्लोजली पैक्ड. दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसिस and they contain numerous chloroplasts. इसमें बहुत सारे chloroplasts present होते हैं and helps in
performing the function of photosynthesis. Then we have spongy parenchyma. जो spongy parenchyma है, it is followed by palisade parenchyma. इसमें जो cells होते हैं they are loosely arranged with large intercellular spaces. यहाँ पे हम देख सकते हैं there are some intercellular spaces. So present below the palisade tissue consists of loosely arranged irregularly shaped cells and it is in contact with the atmosphere through stomata. इसमें spaces भी हैं और stomata के through जो lower epidermis है वहाँ से it is in contact with the atmosphere, helps in gaseous exchange also. Then vascular system. अगर हम vascular system की बात करते हैं तो बहुत सारे vascular bundles present होते हैं leaves में dicot की, और हर एक जो vascular bundle है that is surrounded by a thin layer of parenchymatous cells. Thin layer of parenchymatous cells होती है जिसको कहा जाता है bundle sheath. So it helps in providing protection or mechanical support to the vascular bundles. In this case, the arrangement of vascular bundle in the arrangement of these vascular components like xylem and phloem is different from stem. जो stem है, stem के केस में xylem होता है that is towards pith, और phloem का जो phloem होता है towards pericycle, बाहर की तरफ होता है. But in case of leaves, जो xylem है that faces towards upper epidermis. xylem फेस करता है upper epidermis को, और जो phloem है that faces towards lower epidermis. So this is the difference. Cambium leaf में absent होता है, so vascular bundles are closed होते हैं vascular bundle. इसके अलावा they are conjoint. Collateral conjoint means having same radius में xylem और phloem present होते हैं. Collateral means xylem के lateral side में present होगा phloem, so collateral vascular bundle. Xylem consists of tracheids, vessels and xylem parenchyma and few fibers. xylem में चारों components present होते हैं, जबकि जो phloem है उसमें होती है sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma. जो phloem fibers हैं they are absent in case of leaves. So this is the unique point. And lastly is lower epidermis. जो lower epidermis है single layer है, parenchymatous होती हैं and having large number of stomata. तो इसमें stomata present होते हैं while these are absent in upper epidermis. So this is all about the TS of dicot leaf. Next, this is the picture which shows some differences between monocot and dicot. So we will start with this. अगर हम seed की बात करें, जो monocotyledon है उसका नाम जो है that is on the basis of this structure which is cotyledon. So monocots में single cotyledon present होता है. For example, we have some cereals like maize, rice, wheat. इसके अलावा dicots में दो cotyledons present होते हैं, two cotyledons. Like we have all the legumes की बात करते हैं हम, so they are dicots. Then next comes root system की बात करते हैं. जो monocots हैं, monocots have fibrous root system while dicots have taproot system. So taproots arise from the radicle of the embryo. अगर हम vascular bundles की बात करते हैं, जो vascular tissue है, so it is scattered in case of monocot while it is present in the form of a ring in case of dicot. We can see here this arrangement is in the form of a ring. Then if we differentiate on the basis of leaf, so monocots में जो venation होती है that is parallel, और dicot में जो venation है that is reticulate, network like. अगर हम flower की morphology की बात करते हैं, so जो flowers होते हैं monocots में they are trimerous. It means कि जो उसके component है, flower component, they are present in the multiples of 3. So इस तरह की जो arrangement है उसको बोलते हैं trimerous. While in case of dicot it is in the multiple of 4 or 5, so it is also known as tetramer or pentameric arrangement. Trimerous or tetramerous flower we can say, or pentamerous flowers. So these are some differences in case of monocot and dicot. Next we will start with the monocots. So we will discuss about the monocot stem, TS or monocot stem. अगर हम monocot stem की बात करते हैं तो outline इसकी circular होती है. Outer layer is epidermis which is covered by cuticle, thick layer of cuticle. Then it is followed by sclerenchymatous hypodermis. Sclerenchymatous hypodermis present होती है जो इसको strength provide करती है, mechanical support provide करती है. Then we have this tissue which is known as ground tissue. So ground tissue is made up of parenchymatous cells जिसमें कोई भी differentiation नहीं होती है cortex में, endodermis में, pith में. So this tissue is ground tissue.
वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं, सो वेस्कुलर बंडल जो हैं इस ग्राउंड टिश्यू में एम्बेडेड होते हैं, दे आर स्कैटर्ड, इसकी कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती है, दे आर स्कैटर्ड इन स्टेम। सो अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ, और इसमें जो जाइलम होता है, जाइलम की अरेंजमेंट होती है इसमें वी शेप अरेंजमेंट, और जो वी की दो आर्म्स हैं, दीज आर्म्स कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय द मेटाजाइलम वेसल्स। सो वेसल्स इसको ऑक्यूपाई करते हैं, और इसका जो एंड है इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय प्रोटोजाइलम, एंड देन दिस कैविटी विच इज़ नोन एज lysogenous cavity, and this cavity is formed by rupturing of protoxylem elements, inner protoxylem elements. So this is the brief introduction of this TS of monocot stem. Let's discuss it. Shows following structures. First one is epidermis. एपिडर्मिस तो इसमें जो है आउटर मोस्ट लेयर है, पैरेन्काइमेटस है, कम्पैक्ट क्लियरेंस सेल से बनी होती है, और इसकी जो आउटर वॉल है दैट इज़ क्यूटिनाइज्ड, मीन्स थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है. But in some cases, this continuity of this epidermis is interrupted by presence of pore-like structure which are known as stomata present हो सकते हैं stem की epidermis में. Then next is hypodermis. It is sclerenchymatous है, जैसे कि मैंने डिस्कस कर लिया था. Made up of 2 to 3 layers of sclerenchymatous cells. Sclerenchyma के सेल से मिलकर बनी होती है. And these cells are highly lignified, and in cross section they appear polygonal. Polygonal दिखते हैं हमें ये क्रॉस सेक्शन में, अगर इसके क्रॉस सेक्शन देखें. एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम. इनका मेन काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना स्टेम को. सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस इज़ द टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम. इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर क्लोजली अरेंज्ड इन द पेरिफेरल रीजन एज कम्पेयर टू द सेंट्रल रीजन. सो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोई रिंग की फॉर्म में नहीं है, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है इनका इन द ग्राउंड टिश्यू. सो ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं. सो ग्राउंड टिश्यू इज दिस मास ऑफ, जो ये मास है पैरेन्काइमेटस सेल्स का थ्रू आउट दिस स्टेम. सो इट इज़ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स विच आर थिन वॉल्ड सेल्स, लिविंग सेल्स, एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम हाइपोडर्मिस टू द सेंटर ऑफ द स्टेम. ये हाइपोडर्मिस के नीचे से स्टार्ट होता है अप टू द सेंटर. सो दिस इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू. इट कंटेन्स लूजली अरेंज्ड सेल विद इंटरसेलुलर स्पेसेस. देन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम जो ग्राउंड टिश्यू है इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एट्सेट्रा. और जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर एम्बेडेड इन दिस रीजन, इन द रीजन ऑफ ग्राउंड टिश्यू. नेक्स्ट वी हैव वेस्कुलर बंडल्स. जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, सो दे आर कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स. कोलेटरल वेस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम, और दिस इज ये जाइलम है, दीज आर जाइलम वेसल्स, और ये है फ्लोएम. सो दीज आर कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स, एंड दीज आर क्लोज वेस्कुलर बंडल. दिस इज अ क्लोज वेस्कुलर बंडल बिकॉज देयर इज नो कैम्बियम स्ट्रिप विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम. सो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल. सो वेस्कुलर बंडल्स आर कोलेटरल एंड क्लोज्ड. क्लोज्ड क्यों? क्योंकि कैम्बियम इज एब्सेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, और स्कैटर्ड होते हैं ये ग्राउंड टिश्यू में. दे आर न्यूमरस इन नंबर एंड लाइज क्लोजर इन पेरिफेरल रीजन. जो पेरिफेरल रीजन है बाहर का रीजन स्टेम का, उसमें ये नज़दीक प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द सेंट्रल रीजन. सेंट्रल रीजन में दे आर प्रेजेंट थोड़े दूर प्रेजेंट होते हैं ये सेंट्रल रीजन में. अगर हम इस वेस्कुलर बंडल की आउटलाइन की बात करें सो इट इज़ नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन और ओवल इन आउटलाइन. ओवल होते हैं आउटलाइन में. और जो वेसल्स हैं जाइलम के दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वी. हम देख सकते हैं दिस इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वी. और जो डाइवर्जेंट एंड्स हैं, दीज एंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है मेटाजाइलम के वेसल्स. दीज कैविटीज़ ये रिप्रेजेंट करते हैं वेसल्स which are oval metaxylums vessel, और इनमें होती हैं pitted thickenings. जो प्रोटोजाइलम है it is positioned towards center. So this structure is protoxylem. This is protoxylem, and the condition of xylem is endark. Endark means
इसकी जो प्रोटोजाइलम है दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पिथ, सो इस तरह के वेस्कुलर बंडल्स को हम बोलते हैं एंड डार्क वेस्कुलर बंडल्स। देन जाइलम, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के बाहर प्रेजेंट होते हैं जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट है दिस कैविटी विच इज़ नोन एज लाइसोजिनस कैविटी। दिस लाइसोजिनस कैविटी ये बनती है बाय द रप्चरिंग ऑफ इनर प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोजाइलम के नीचे प्रेजेंट होती है लाइसोजिनस कैविटी। लाइसो मीन्स ब्रेक डाउन, सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय रप्चरिंग और ब्रेक डाउन ऑफ इनर प्रोटोप्लाज्म एलिमेंट से बनती है। सो ये इसका यूनिक फीचर है। इसके अलावा जो फ्लोएम है इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब होती है फ्लोएम में और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा और फाइबर्स एब्सेंट होते हैं मोनोकॉट स्टेम में। So this is all about today's lecture. Thank you. Have a nice day.